are categorized into what? Goods, fixed asset, and consumable. Goods, revenue expense, revenue item, expense नहीं, revenue item मतलब something which is recurring in nature, something that is related to the business from the day-to-day perspective. That is why it is called as revenue or recurring. Product that a business, BIZ is business, deals in. Purchased for resale or using in production, or using in production. That is what we call as the goods. So in case of goods, when purchased, the account that will get affected is purchase account, and when sold, the account that will get affected is sales account. Am I right? Fixed asset, capital item, purchased for long-term use, no intent of resale in short period. You are not purchasing it for the purpose of reselling it. You are purchasing it for the purpose of use within the business over a longer period of time. इसीलिए हम लोग उसे फिक्स्ड असेट करके ट्रीट करते हैं. When I am purchasing the furniture, I am not purchasing ये बैच खत्म हुई कि उसके बाद में immediately बेच देंगे. Right? That is purchased for the long-term use in this business or not, and that's why that is considered as a capital expenditure or a fixed asset. On purchase or sale thereof, क्योंकि पुराना हो गया तो बेचना भी पड़ सकता है. नहीं, हमने जब खरीदा था तब बेचने का इंटेंट नहीं था, बट कुछ समय बाद क्योंकि वो पुराना हो गया, क्योंकि वो इनएफिशिएंट हो गया, क्योंकि उसका अपग्रेड आ गया, इसलिए हमने पुराना आइटम बेचना पड़ सकता है. नहीं, राइट और नॉट? So whether you purchase or sell this fixed asset, the account that will get affected is the respective asset account. Am I going right? Whereas consumables are also revenue items. Purchased for short-term use in business, not meant to be resold. अब कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ सप्लायर्स हैं, ये जब हमारे पास प्रोडक्ट्स भेजते हैं तो वो बॉक्सेस में भेजते हैं, कार्टन्स बना के भेजते हैं.
Now these cartons they purchase from outside. वो 50-50, 60-60 रुपए का कार्टन खरीद के आते हैं, उसमें वो प्रोडक्ट भर के फिर they supply it. They don't charge for that 50-60 rupees of that carton. Why? Because they are sending it in that carton just for the sake of protection of those goods or not. So for them, that carton purchased will be considered as consumable expense. When they are purchasing those cartons, those boxes, corrugated boxes, they are not purchasing for the purpose of selling it to us. They are purchasing it for providing the goods in the protective, in the good condition or not. And that's why for them, the purchase expense related to that carton cannot be considered as purchase, but it is a consumable expense. And therefore, respective consumable expense will be the account getting affected here. अब मैं कह रहा था कि हमने इनको क्यों डिवाइड किया, आखिर बाइफरकेट करने की जरूरत क्या थी? आपकी जिंदगी चल रही थी ना सही, परचेज किया, परचेज को डेबिट कर दो, बात खत्म करो. I said there is something called as capital, there is something called as revenue. I said there is something called as direct, there is something called as indirect. In fact, there is a category called as operative as well as non-operative. ये लिख लिया आप लोगों ने? So, if I talk about the expenses, the expense can be a capital expense. An expense can also be a revenue expense. The revenue expenses are further divided into the operating expenses or operative expenses and non-operative or non-operating expenses. और ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, दोज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दीज ऑल आइटम्स. एक्सपेंस. व्हाट इज एन एक्सपेंस? व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सपेंस? नहीं, हिंदी में मीनिंग नहीं पूछा मैंने. हाँ, खर्चा डायरेक्ट. हाँ, कुछ बंदे परेशान हो जाते हैं, यार मास्टर का ध्यान क्यों जाता है हमारी तरफ. हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सपेंस? Expecting something in return, cost incurred on producing some goods. Yes, cost incurred on day-to-day basis, cost incurred for running the business. Cost incurred for to make an asset or to do recurring expenses. अच्छा, expenses means to do recurring expense. तो तू वैसे ही बोला ना. हाँ, तो cost incurred to in running expenses is expense. So that's good. You should keep giving the answer. Don't worry on that part. हाँ, हाँ जी, व्हाट इज एक्सपेंस? प्रणव, तेरे सिर में दर्द है, वैसे ही बिहेव कर. हाँ, बड़ा कमेंट पास कर रहा है वहां बैठे बैठे एक दूसरे के ऊपर. देखा मैंने तेरे को. हाँ, बोलिए बोलिए. What is an expense? No sarcasm, huh? Real वाला example. हाँ जी. Cost incurred on maintenance. हाँ जी. Outflow of money is expense. पक्का? Are you sure?
आधा, सिर्फ आउटफ्लो तक के ही ठीक है, इनफ्लो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यस हाँ जी। कॉस्ट इनकर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज एक्सपेंस। बेटा मैंने टाइप थोड़ी पूछे थे, व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। आई हैव आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस। अच्छा, कुछ चीज पाने के लिए किया गया खर्च। बाप रे, थोड़ा डीप था। पेटी एक्सपेंसेस, ये अलग ही कंसेप्ट है। वापस तुम ना जब मेरे को जवाब देते हो ना, सोच लिया करो, मेरे पास हर चीज के लिए अगला सवाल होता है। क्योंकि जब तुम नहीं थे ना, उसके 2 साल पहले से मैंने अकाउंट्स पढ़ाना चालू किया है। ऐसा कई बार होता है जब बंदों को बोलना पड़ता है तुम नहीं थे। हाँ, ये याद रखना। एक क्लास में ऐसे ही बोल दिया था मैंने, आई वॉज टॉकिंग अबाउट सम स्टोरी एंड आई सेड कि तुम नहीं थे। एक बंदे ने बीच में हाथ ऊपर कर लिया। ये क्या हुआ भाई? कहता सर मैं प्रोसेस में था। यार कमाल है। मैंने कहा इतना जबरदस्त गहराई वाला आंसर दिया ना बंदे ने। फिर उसी क्लास में 2-4 दिन बाद कोई विषय हुआ था, और फिर मतलब उसके 2-3 साल पहले की बात थी। इस समय तो तुम बिल्कुल नहीं थे। फिर बंदे ने हाथ ऊपर किया। अब क्या हुआ? होगी ना, प्रोसेस तो बाद में थी ना। तब मैं प्लानिंग में था। यार तो पेरेंट्स से क्या क्या चर्चा करके आया है। मतलब कब मेरे को प्लान किया, कब मेरे को प्रोसेस किया एंड ऑल दैट। डू यू डिस्कस समथिंग लाइक दिस विद योर पेरेंट्स? यू शुड नॉट। बंदे इतने जजमेंटल हो गए ना आजकल, सारी डिटेल पता होती है ना। गूगल देवता जिंदाबाद। Anyways, expense to get something. हाँ, बताओ what is a खर्चा? What do you mean by खर्चा? सर जो हो जाए पर उसकी ना हो चर्चा, उसे हम लोग कहते हैं खर्चा। Yes, go ahead. Total spending on operational activities is expense. उधर नॉन ऑपरेटिंग भी कुछ तो लिखा मैंने। जरा अपनी जवाब ही नहीं देना है, कोई तरीका है? इतना मुश्किल से हम लोग कहीं से इकट्ठा करके जवाब देते हैं, मास्टर आगे कुछ तो लगा देता है। बाकी लोग बड़े होशियार है। या हम तो जवाब ही नहीं देंगे। क्या हुआ चेक सेट? किसकी ड्राइंग बना रहा है? हाँ, अच्छा लिख रहा था। तू लिख रहा था, तेरा बाजू वाला देख रहा है, तू क्या बाद में लिखेगा? वाइट टी शर्ट, तू बाद में लिखेगा? तेरा लिख के हो गया? ये तू लाइफ बॉय यूज नहीं करता क्या? वो साबुन स्लो होता है ना। ये बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? बेटा हर जगह ऐसा पेन स्लो चलाएगा तो दिक्कत होगी। सो लेट्स कम है। हाँ, मतलब एग्जाम में पेपर कंप्लीट नहीं होगा ना। कमाल है यार तुम लोग ना, मतलब सच्ची में गंदे बच्चे हो तुम लोग। हाँ, करप्ट माइंड्स। वेरी एनीवेज, स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स। चेक सेट, क्या होता है एक्सपेंस? नाम क्या तेरा? हाँ, गणेश। शुरुआत तो तेरे से ही करनी थी मैंने। गणेश है ना? हाँ, व्हाट इज एक्सपेंस? यार ये मोबाइल साइलेंट कर दिए करो यार तुम लोग। किसी दिन मैं अगर भड़क गया ना, दिक्कत हो जाएगी तुमको। एनी अमाउंट, हाँ गूगल के आंसर। any amount spent to generate the revenue for the
बिजनेस, पक्के में कॉपीड है, इतना फास्ट में टाइप किया हुआ है ना, इज एक्सपेंस. अच्छा, अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न एन इनकम, द कमोडिटीज इन विच द ट्रेडर डील्स. हाँ, अच्छा वो गुड्स के बारे में था. ओके, हाँ चलो चलो जवाब दो. हो गया तुम्हारे जवाब खत्म? हाँ जी. कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस. कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स भाई? तो ICSE से था. तेरा बोर्ड कौन सा है? 12th वाला है ना? 12th 10th तक क्या ICSE था? वहीं पढ़ा दिया तुमको ये सब? नहीं, इतना मतलब गहराई वाला आंसर है ऐसे, इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर. अच्छा, रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस, स्टाफिंग एक्सपेंसेस, वो इनडायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा. अच्छा, नहीं अभी तक तो अपन उधर गए ही नहीं ना, अभी तक तो पहले हेडिंग पे ही रुके हुए ना, अभी आगे के सवाल तो बाकी है. अच्छा, हमको तो लगा यही खत्म हो जाएगा. बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी यार, ये मास्टर अलग ही लेवल है. हाँ, बालकनी तुम लोग भी आंसर दे सकते हो. आज मजा आ रहा है मेरे को, बहुत दिनों के बाद में इंटरेक्शन है कि क्लास में ना, मतलब इंटरेक्शन होता है तो इट्स अ कंफर्टेबल फीलिंग, यू नो. एटलीस्ट हमको पता होता है कि हमको क्लास में ही बैठना है, दिमाग से भी. सर दर्द कम है बेटा? थोड़ा ही था ना, इसलिए पूछ रहा हूं. छोड़ो सर, आपने ना मेरे सर दर्द की मतलब आज बैंड बजा दिया आपने. अगली बार से बताऊंगा, अगली बार से डायरेक्ट मैं बोलूंगा स्टमक अपसेट. आजू बाजू वाले सारे गायब. स्टमक अपसेट है यार, कब क्या होगा पता नहीं. सो एनीवेज, an amount that you spend for generating the revenue is nothing but what we can consider as an expense. Any amount, whether you are incurring it for purchasing an asset, whether you are incurring it for purchasing the goods, whether you incur it for the purpose of carrying the business activities smoothly. All such amounts spent are ultimately intended to what? To generate the revenue, to generate the income for the business or not. अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं, काहे खरीद रहा हूं बे? फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इट बैक और नॉट. तो जब मैंने गुड्स खरीदे, अल्टीमेट इंटेंशन तो यही था ना कि मैं उससे रेवेन्यू जनरेट करूंगा. सो दैट अमाउंट स्पेंट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस. मैंने यहां पे बेंचेस लगवाई, क्यों खरीदी बेंचेस? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ इंपार्टिंग द एजुकेशन और नॉट. तो यहां जो मैंने खर्च किया, भले ही आप उसे कैपिटल एक्सपेंस का नाम दो, पर इंटेंट क्या था कि यहां आके स्टूडेंट्स बैठेंगे और वो स्टूडेंट्स मुझे फीस देने वाले हैं. तो अमाउंट दैट आई स्पेंट इज फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू ऑफ माई बिजनेस और नॉट. अगेन दिस इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस. अगर मैं मार्केट में एडवर्टाइजमेंट लगा रहा हूं, दुनिया भर के बोर्ड्स लगवा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं? ताकि लोग मेरे नाम को पहचाने और उसके बाद मेरे पास आके यहां पे एडमिशन लेके मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट करें या नहीं. सो द अमाउंट दैट अगेन आई स्पेंट इज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग द रेवेन्यूज. सो एनी एंड एवरी अमाउंट दैट आई एम स्पेंडिंग विथ एन इंटेंट, इनफ्लो होता है बेटा, सिर्फ आउटफ्लो नहीं होता है, with an intent to generate the revenue, with an intent to get the income, that amount spent is considered as an
एक्सपेंस। ये जरूरी नहीं है कि जब आपने खर्च किया उसी समय आपको रेवेन्यू मिला। मैंने जब ये क्लासरूम अक्वायर किया, या फिर यहां पे जब फर्नीचर लगवाया, या फिर यहां जब कंप्यूटर लगवाया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट द रेवेन्यू इमीडिएटली। द रेवेन्यू वुड कम एट अ लैटर पॉइंट इन टाइम और नॉट, may come at a later point in time, may come at the same time, correct or not? मेरे पास एक कस्टमर आया, उस कस्टमर ने कुछ प्रोडक्ट डिमांड किया, दैट प्रोडक्ट वाज नॉट अवेलेबल विथ मी, बट आई टोल्ड दैट कस्टमर मैं तुम्हारे लिए सोर्स करवा सकता हूं। कस्टमर कहता है चलो ठीक है, कितने दिन में दोगे? मैंने कहा 4 दिन में प्रोवाइड कर सकता हूं। कस्टमर कहता है ओके आई वांट इट। आई टेल द कस्टमर पहले पैसा एडवांस, आई गेट द रेवेन्यू फर्स्ट, then source the material and give it to him. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि the amount that I have spent is not my expense. The amount that I got from my customer is my income. And then I source the material to provide it to my customer. That amount will be considered as my expense because that amount I am spending for the purpose of generating my revenue or not. And that's why I said any amount spent to generate the revenue into my business, we consider that as expense. Is the point right? So, expense, amount spent to generate revenues of revenue or income for business. We consider this as what? The expense. Now these expenses are further divided into the capital expense and the revenue expense. Capital, I have spent the amount against which I am going to get the benefit over a longer period of time on a recurring basis. जैसे मैंने गाड़ी खरीदी, क्यों खरीदी गाड़ी? To provide a convenience to myself, for my commute, for my comfort, I purchased that vehicle or not? अब वो जो कार खरीदी मैंने, आई एम गोइंग टू यूज इट ऑन अ रिकरिंग बेसिस और नॉट? द अमाउंट दैट आई हैव स्पेंट ऑन दैट कार इज ओनली वंस और नॉट? सर ऐसे कैसे? आपने ईएमआई पे खरीदी होगी, सो व्हेन यू आर परचेसिंग द कार, ऑफ कोर्स ईएमआई पे खरीदनी पड़ेगी ना, कहां हम लोग अफोर्ड कर पाए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, राइट? सर आप लोगों को देख के तो हम लोग मोटिवेट होते हैं कि 5 साल बाद अपने पास भी ऐसी गाड़ी होगी, 5 साल बाद अपन भी इतने कंफर्ट में घूमेंगे। मेरे को सीए बन के 20 साल हो गए, राइट? तो तुम थोड़ा जल्दी सोच रहे हो और कुछ नहीं। हाँ खैर मिलता है, आजकल हो जाता है यार। देयर वॉज द स्टूडेंट, शी वॉज वर्किंग विथ ईवाई एज आर्टिकल स्टूडेंट, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ। आर्टिकलशिप में इसका फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड था 15,000, सेकेंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर 25,000। आर्टिकलशिप, हाँ, अब तक के सीए नहीं बनी थी। दे यूज टू गिव हर द टीए, ट्रैवल अलाउंस, डेली अलाउंस वगैरह वगैरह। व्हेन हर सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप completed, at that time she purchased her own car out of the stipend money. वो वैगनार खरीद के आई थी और वो वैगनार में घूमती थी खुद की, राइट? तो जरूरी थोड़ी कि अपने को इतने साल रुकना पड़ेगा। तुम स्लो थे, हम तो स्पीड वाले हैं ना, राइट? ऐसा बंदा मन ही मन सोचता है। एनीवेज, तो गणेश ठीक है ना सब? हाँ यार मैं कल से क्लास में नहीं आऊंगा। बंदा उधर ही पिलर वाले को बोलता है भाई कल से उधर जगह पकड़ मेरे लिए, और नजरों में आ गया आज मैं।
कोई नहीं, चलते रहते हैं। नजरों में आएंगे तभी लोग पहचानेंगे बेटा। तेरे को मार्केट में पहचान बनानी है कि नहीं? हाँ, उसके बगैर काम नहीं बनता है। कौन सा वाला? सर सारे काम चलेंगे। बड़े नालायक बच्चे हो यार तुम लोग सच में। हाँ बोल रहे हो भी। वे कम से कम नाम की तो लाज रख। सर बापा ने रखी उतना ही काफी है। हाँ, वेल एनीवेज, तो इफ आई हैव परचेज द व्हीकल for my convenience, the amount that I have spent on that vehicle will be considered as a capital expense, because जो गाड़ी मैंने खरीदी वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज गाड़ी खरीदी और 2 महीने बाद नहीं यार मेरे को मूड नहीं हो रहा, चेंज कर देते। यू कैन नॉट डू इट समथिंग लाइक दैट। वी जनरली कीप द व्हीकल फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 to 5 years। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस गाड़ी के ऊपर जो खर्च किया गया एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द व्हीकल विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंस। पर सर आपने ईएमआई पे खरीदी होगी तो आपने तो खरीदते समय कुछ नहीं दिया, या जो डाउन पेमेंट होगा सिर्फ उतना ही दिया। मेरे बिहाफ पर मेरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पैसा दिया होगा या नहीं? जिनसे मैंने लोन लिया, they must have provided the money against that or not. So ultimately that becomes a expense for me, and that expense later on becomes a liability because I borrowed that money. तो मैंने क्या किया, मान लो मैंने 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी या 25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। वो एसएम सर वाली गाड़ी कितने की है? 30 लाख की। हाँ, कुशाक ना, स्कोडा कुशाक की ऑक्टेविया। कुशाक इज नॉट 30 लाख, नहीं 29 की नहीं है, 20 ना। हाँ वही, मैंने जब कोटेशन मंगवाया था तब कुछ उसने 19 का कोटेशन दिया था, बाद में मैंने कहा नहीं अपनी बस की बात नहीं है। तो अब एसएम सर हैज परचेज दैट व्हीकल। अरे तुम्हारे पास कब वो शोरूम में गए थे और कब उनको गाड़ी की डिलीवरी मिली, इस पूरी स्टोरी की डिटेल जानकारी है। तो what's wrong in talking about that? Speaking about something in front of the informed people is always better, you know. Well, anyways, वे सिर्फ राइड ही नहीं देते, ये हमेशा कहानियां ही सुनाते हैं। किसी दिन सर को बोलते हैं सर वी ऑल्सो वांट द राइड इन दैट स्कोडा, नहीं कुशाक। विष्णु विल ब्रिंग इट सम टाइम, मेरा ड्राइवर विष्णु। एनीवेज, नहीं अब तक के नहीं आया विष्णु, अभी तक नहीं आया, ठीक है। मेरा पोता नील Fine, come back. I love you SM सर। हाँ गलती से बाद में देख लिया वीडियो तो तो कहानी ये है कि मान लो 30 लाख रुपए की ऑक्टेविया स्कोडा, राइट। अब 30 लाख रुपए एक साथ देने के लिए तो है नहीं, तो हमने क्या किया, हमारे जेब से 5 लाख रुपए लिए, बैंक से 25 लाख लिए और ये 30 लाख रुपए स्कोडा को दे दिए, राइट। नाउ फॉर अस एक्सपेंडिचर इज हाउ मच? 30 lakh is the expenditure and not 5 lakh. Our expense is how much? 30 lakh rupees. That 30 lakh will be considered as a capital expense. क्यों? कार शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए, जिसका बेनिफिट हमको बार बार मिलने वाला है नहीं, ऑन अ रिकरिंग बेसिस, एंड दैट्स व्हाई दैट अमाउंट स्पेंड विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंस.
सर फिर वो जो बैंक से लोन लिया उसको जो ब्याज देने वाले हैं, विल दैट बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंस? आंसर इज नो. Why? Because the interest that is paid is on recurring basis or not, and therefore the amount of that interest that we pay will be considered as a revenue expense. However, there is a catch in that. What that is, वो मैं बाद में समझाऊंगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट, वो मैं थोड़े दिन के बाद समझाऊंगा. अभी के लिए उस पर ज्यादा नहीं जाते हम लोग. अब जब स्कोडा खरीदी गई तो वो बंदे ने कहा कि सर वो उसकी मैटिन आती है, उसके सीट कवर्स आते हैं, उसको वो टेफ्लॉन कोटिंग करवा लो आप, इट विल प्रोवाइड यू अ काइंड ऑफ स्क्रैच प्रूफ व्हीकल एंड ऑल दैट. व्हाइट कलर की गाड़ी डर लगता है बाहर निकालने को, राइट? कहीं स्क्रैच, और जब तक पहला स्क्रैच नहीं लगता है ना तब तक बड़ा प्रिजर्वेटिव होता है, बंदा प्रिजर्व करके चलता है, पजेसिव होता है, प्रिजर्वेटिव नहीं पजेसिव होता है. वो किसी दिन पहला स्क्रैच लग जाए गाड़ी को तो बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा. उसके बाद आदत पड़ जाती है. तो ऑब्वियसली मतलब पुणे जैसी सिटी में ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट गेटिंग इट स्क्रैच्ड means you're not taking your vehicle out of the garage. It's as simple as that, right? But anyways, तो अब वो व्हीकल खरीदा, उसके लिए 30 लाख रुपए का खर्च किया, पर वो बंदे ने इतनी खतरनाक मार्केटिंग की, सीट कवर, मैटिन, टेफ्लॉन कोटिंग और क्या क्या 2-4 चीजें दे दी. These amounts that we are spending is incidental or making the asset ready to use or not? कि उसको प्रॉपरली हमें अगर यूज करना है तो उसके लिए किया गया खर्च है नहीं. अगेन, हम क्या सीट कवर्स रोज बदलते हैं? हम लोग क्या मैटिन रोज बदलने वाले हैं? चांस ही नहीं. टेफ्लॉन कोटिंग सवाल ही नहीं उठता, 2 साल तक के तो टेंशन ही नहीं है. विच मीन्स वॉट? द अमाउंट दैट वी आर स्पेंडिंग टू मेक एन असेट रेडी टू यूज, or the amount that we are spending incidental to purchase of asset is considered as a capital expense. क्यों? क्योंकि ये सारे खर्च जो किए थे ये कार की प्राइस में इंक्लूडेड नहीं थे. कार की प्राइस 30 लाख रुपए फिक्स थी, पर उसके अलावा ये एडिशनल खर्च किया है नहीं. That was basically to make us more comfortable in that vehicle, and that's why that capital expense, that expense is considered as a capital expense. अब हमने स्कोडा को 30 लाख रुपए दिए, वो गाड़ी हमारी होगी, ये बराबर है, बट वी नीड टू गेट दैट व्हीकल रजिस्टर्ड इन आवर नेम और नॉट. हम लोग आरटीओ के पास गाड़ी लेके गए, इसको हमारे नाम पे रजिस्टर करो, आरटीओ वाले नंबर प्लेट देते हैं, द रजिस्ट्रेशन नंबर. अब ये रजिस्ट्रेशन वो क्या चैरिटी पे करने वाले? दे चार्ज द फीस अगेंस्ट दैट, विच इज कॉल्ड एज आरटीओ टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन फीस. 30 लाख की गाड़ी के पीछे लगभग 1 लाख रुपए लग जाता है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड आरटीओ टैक्सेस. अब ये जो 1-1.25 लाख रुपए आपने वहां पे खर्च किया, आर यू गोइंग टू इनकर दैट एक्सपेंस अगेन? इज इट रिकरिंग इन नेचर? बट इट इज बिकॉज यू हैव परचेज दैट व्हीकल, यू हैव टू इनकर दैट एक्सपेंस और नॉट. क्योंकि अगर आपको उस गाड़ी के लीगल ओनर का हक चाहिए तो आपको उस रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरीली कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा. मतलब द अमाउंट दैट यू आर स्पेंडिंग इज incidental to purchase of asset or not, and therefore that amount will also be considered as capital expense. तो ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ असेट खरीदना होता है. असेट खरीदने के बाद उस असेट को यूजेबल बनाने के लिए किया गया खर्च, असेट खरीदने के बाद उस असेट को अपना बनाने के लिए किया गया खर्च इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंस. एम आई राइट? Now suppose you have an existing asset, आपके पास ऑलरेडी कोई असेट है और उस असेट पे आपने कुछ खर्च किया जिससे उस असेट की एफिशिएंसी, कैपेसिटी बढ़ गई. That amount spent on an existing asset that increases the efficiency of that asset will also be considered as a capital expense. मतलब क्या?
जब जिस क्लासरूम में आप बैठे हो ना, कुछ दिन पहले तक ये क्लासरूम ऐसा नहीं हुआ करता था। 1 महीने पहले तक वो पीछे वाले जो बैठे ना बालकनी, वो बालकनी थी ही नहीं, वो दूसरा क्लास था। I sincerely request everyone to keep your mobile phones silent. अदरवाइज सिचुएशन ये ना बन जाए कि मैं हो जाऊं वायलेंट, राइट? सो टेक केयर ऑफ दैट। इसके बाद ना रूल है अपने पास, जिसका बजेगा उसकी बजेगी, राइट? तो अगली बार याद रखना, किसी का अगर मोबाइल बजा क्लास में तो बेटा ऐसी बजाऊंगा ना, तो अगली बार से मोबाइल नहीं लेके आओगे क्लास में। सीरियसली बोल रहा हूं, राइट? मोबाइल एकदम गाड़ी की डिक्की में रख के आओगे, रहने दे भाई, मास्टर परेशान करता है बाद में। वेल, तो ये जो एडजेसेंट वाला प्लेस है वो हमारा स्टोर रूम था, वहां से सब बुक डिस्पैच वगैरह होता था। बट बिकॉज द कैपेसिटी वॉज रिक्वायर्ड, व्हाट वी डिड, वो एकदम मुन्ना भाई एमबीबीएस भाई, अपन एक काम करते, ये दीवार फोड़ डालते, वो वाला रूम अंदर ले लेते, तो एकदम बाथटब बीटटब एंड ऑल दैट। हाँ, बाथटब बीटटब नहीं लगाया हमने, बंदे ढूंढ रहे कहां है बाथटब। सो वी हैव गॉट दैट क्लास मर्ज्ड विद दिस क्लासरूम। In that case, the amount that we spent on breaking that wall, on repairing of that class, and getting it included in this classroom, coloring this, so we did complete renovation, and as a result of that, इस classroom की capacity बढ़ गई या नहीं? तो amount that we are spending in increasing the efficiency, capacity of the classroom will be considered as capital expense. पर मान लो ये क्लासरूम ऐसा ही था, इस क्लासरूम में कोई दिक्कत नहीं थी, ये इतनी ही साइज का था, पर वो पेंट जो था वो खराब हो गया था। हमने सोचा नया बैच आ रहा है यार, चलो यार नए नए उनको वापस से रंगवा देते हैं, फिर वो कुछ तो लिख पाएंगे उसके ऊपर, राइट? तो क्या क्या लिख के जाते हो बे तुम लोग, इतनी कहानियां होती हैं तुम्हारे पास। तो हमने, और अगर गलती से पकड़े गए, बेटा कैमरे लगे हुए यहां पे, तो बंदे ढूंढ रहे कहां है कैमरे, कहां, हमको रोज देखते हैं लोग। अच्छा, वो कुछ बंदे अंदर ही अंदर सोच रहे हैं यार मैंने जो जो कुछ किया इनको सब मालूम पड़ गया। तो अगर वी गॉट दिस क्लासरूम रीपेंटेड, रीपेंट करने से इस क्लासरूम में कोई एफिशिएंसी में बदलाव आया क्या? कि क्लास को रीपेंट करवाया, क्लास के नहीं नहीं अब तो 4-5 और बैठ ही जाएंगे। रीपेंटिंग डज नॉट इंक्रीज द एफिशिएंसी, अंडरस्टैंड? जब रिनोवेशन किया तब अगर रीपेंटिंग करवाई तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिनोवेशन, बट अगर सिर्फ रिनोवेशन किया तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंस, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। इज माय पॉइंट राइट? कैपिटल एक्सपेंस क्लियर है सबके लिए? इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे कल के लेक्चर में, आज थोड़ा लेक्चर ही ज्यादा एक्सटेंड हो गया। थैंक यू वेरी मच।